Bhawna Sahni and I'm back with a new video for class 10, and in this video we are doing the question and answer of the part 1 of the chapter Age of Industrialization. तो जो Age of Industrialization का आपका टॉपिक 1 है बुक का, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, so kindly see it. एंड बाकी दूसरे पार्ट के दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स के लिए kindly see the link below. Alright, so let's get started with this one. Start with this question answers. पहला क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? राइट, द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फर्स्ट फेज था, राइट, फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो हमने पढ़ा था उसमें सबसे डायनामिक इंडस्ट्री कौन सी थी? राइट, तो आपने पहले प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बताना है कि फैक्ट्रीज आने से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम होता था। इंटरनेशनल मार्केट के लिए गुड्स प्रोड्यूस होते थे पीजेंट्स और आर्टिसंस के हाउस होल्ड में। दैट एरा वाज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और सबसे डायनामिक इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज कॉटन एंड मेटल। राइट, सो लेट्स रीड दिस आंसर. Even before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was a large-scale industrial production for an international market. This was not based on the factories. This phase of industrialization referred to as proto-industrialization. Next, the most dynamic industries in Britain were clearly metal and cotton. Alright, moving towards the next question. Next question talks about, this is the next question. Why was trade complicated under trade guilds and urban craft? ट्रेड गिल्ड और अर्बन क्राफ्ट के टाइम पे ट्रेडिंग डिफिकल्ट कैसे हो गई थी? एंड हाउ डिड ट्रेड मर्चेंट मैनेज ट्रेड? तो ट्रेड मर्चेंट्स ने कैसे ट्रेड को मैनेज किया? ऑलराइट, ट्रेड मर्चेंट ने कैसे ट्रेडिंग को मैनेज किया? या फिर क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स क्या थे और उनके फंक्शन बताइए। राइट, तो जैसे जैसे ट्रेडिंग बढ़ रही थी, कॉलोनीज जो है टेरिटरीज को एक्वायर कर रही थी अलग अलग पार्ट्स में, तो गुड्स की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन मर्चेंट अपनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। राइट, उसके बाद फंक्शंस बताने ट्रेड गिल्ड के। राइट, सो लेट्स रीड दिस. With the expansion of world trade and the acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing. But merchants could not expand production within town. This was because here urban crafts and trade guilds were powerful. Right, and functions of trade guild में क्या लिखोगे आप कि जितने भी प्रोड्यूसर्स थे वो ट्रेड क्राफ्ट पर्सन को ट्रेन करते थे, प्राइस को मेंटेन करते थे, प्रोडक्शन को मेंटेन करते थे, कंपटीशन को रेगुलेट करते थे, एंड ये कोशिश करते थे कि कोई भी नया ट्रेडर मार्केट में ना आए। राइट, और रूलर्स ने क्या किया था? इनको मोनोपोली दे दी थी, राइट टू प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर द न्यू मर्चेंट टू एंटर द मार्केट। तो मर्चेंट्स ने क्या किया? उन्होंने कंट्री साइड जाके अपना काम करना शुरू कर दिया, पीजेंट्स और आर्टिसंस को एडवांस दिया और उनसे अपना काम करवाया, and persuaded them for manufacture for international market. Right, so with the expansion of the world trade and the acquisition of colonies in different parts of the world, the demand of goods began growing, but merchants could not expand production within town. This was because here urban crafts and trade guilds were powerful. Functions क्या थे trade guilds के? These were associations of producers that trained craft person, maintained control over production, regulated competition and prices, and restricted the entry of new people into trade. Alright, rulers granted different guilds the monopoly right to produce and trade in specific products. It was therefore difficult for new merchants to set up business towns, so merchants from the town in Europe began moving to the countryside, supplying money to the peasants and artisans, persuading them to produce for international market. Clear? Now moving towards the third question. आपका थर्ड क्वेश्चन है कि मर्चेंट्स एंड पीजेंट्स को म्यूचुअल बेनिफिट कैसे मिलता था फ्रॉम ट्रेडिंग एट कंट्री साइड, या फिर 3 बेनिफिट्स बताओ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के इन द सोसाइटी। तो बेसिकली ये हुआ कि मर्चेंट्स जो है वो प्रोडक्शन एक्सपांड नहीं कर पा रहे थे टाउन में क्योंकि अर्बन ट्रेड, अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड्स बहुत पावरफुल थे। तो इसी वजह से मर्चेंट्स ने कंट्री साइड मूव किया। कंट्री साइड में उन्होंने पुअर पीजेंट्स और आर्टिसंस को पकड़ा
जिन्होंने इन मर्चेंट्स के लिए काम किया, राइट। उस टाइम पे ओपन फील्ड का काम खत्म शुभ हो रहा था एंड कॉमन वर बीइंग एनक्लोज, राइट। जितने भी कॉटेजर्स थे, पुअर पीजेंट्स थे, जो सिर्फ एक कॉमन लैंड के काम पर डिपेंडेंट थे, नाउ दे आर वर्किंग फॉर दीज मर्चेंट्स, राइट। अब उनको ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा था इन मर्चेंट से, ठीक है। बहुत सारे लोग थे जिनके पास टाइनी प्लॉट ऑफ लैंड थे, जिन पे सारे फैमिली मेंबर्स काम नहीं कर पाते थे, तो जब भी मर्चेंट आके उनको काम देते थे, एडवांस देते थे, तो वो उस चीज को ईगरली मान लेते थे, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आती थी। So by working for the merchants, they could remain in the countryside and continue to cultivate this small plot and at the same time earn more by working for merchants. और इस सिस्टम की वजह से एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप बन गया था मर्चेंट्स और कंट्री साइड में, राइट। समझ आया? So let me read this for you. Yes. Merchants could not expand production within town. This was because of urban crafts and trade guilds were very powerful. So merchants moved to countryside. In the countryside, poor peasants and artisans began working for merchants, and this was the time when open fields were disappearing and commons were being enclosed. Cottagers and poor peasants had earlier depended on common land for their survival, gathering their livelihood, berries, vegetables, hay, and straw had to now look for alternate sources of income. Many had tiny plot of land which could not provide work for all members of the household, so when merchants came around and offered advances to produce goods for them, peasants' households eagerly agreed. By working for the merchants, they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plot, and at the same time earn more by working. At the same time earn more by working for the merchants, right? And within this system, a close relationship developed between the towns and the countryside. Merchants were based in towns, but the work was done mostly in the countryside, right? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन कैसे होती है, याद है मैंने आपको एक टेबल के थ्रू, चार्ट के थ्रू समझाया था, राइट। तो मर्चेंट क्लोथियर जो है इंग्लैंड में, सबसे पहले वो वूल खरीदता है वूल स्टेपलर से, राइट। फिर वो उसको स्पिनर के पास लेके जाता है और स्पिनर उसका यान बनाता है, थ्रेड बनाता है। उसके बाद वो वीवर्स के पास जाता है, वीवर्स के बाद फुलर्स के पास, फुलर्स के बाद से वो डायर के पास जाता है। फिर उस प्रोडक्ट की फिनिशिंग लंदन में करी जाती है। उसके बाद जो है मर्चेंट को एक्सपोर्ट करने से पहले, इंटरनेशनल मार्केट में जाने से पहले उसकी फिनिशिंग लंदन में करवाता है, ठीक है। तो लंदन को इसी वजह से फिनिशिंग सेंटर बोला जाता है। और ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज, ठीक है। एंड इट वाज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट। गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे काफी ज्यादा, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर थे जो अपनी फैमिली फ्रेंड्स ये सब मिलके काम कर रहे थे, बट दे आर नॉट वर्किंग इन फैक्ट्रीज, दे आर वर्किंग इन देयर ओन हाउस। हर एक स्टेज पे कम से कम 20-25 वर्कर्स को merchants में employ किया गया था, so they were controlling hundreds of workers altogether, right? So a merchant clothier in England purchased wool from a wool stapler, carried it to the spinners. The yarn thread that was spun was taken in subsequent stages of production to weavers, fullers, and then to dyers. The finishing was done in London before the export merchants sold the cloth in the international market. London, in fact, came to be known as finishing center. This proto-industrial system was thus a part of a network of commercial exchange. It was controlled by merchants, and the goods were produced by vast number of producers working within their family farms and not in factories. And at each stage of production, 20 to 25 workers were employed by each merchant, and this meant that the clothier was controlling hundreds of workers. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द अर्लीस्ट स्टिक फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय द 1730। सबसे पहले जो फैक्ट्रीज आई थी इंग्लैंड में वो 1730s में आई थी, बट लेट 18th सेंचुरी में ही नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड। एक्सप्लेन द रीजन, या फिर एक्सप्लेन प्रोडक्शन आफ्टर कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, राइट। तो सबसे पहले न्यू एरा किसका था? कॉटन का। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वाज कॉटन। एकदम से प्रोडक्शन बूम हो गई थी 19th सेंचुरी में। अगर मैं 1760 की बात करूं तो उस टाइम पे ब्रिटेन सिर्फ 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ कॉटन इंपोर्ट करता था अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज में देने के लिए, राइट। और 1787 में सीधा इंपोर्ट 22 मिलियन पाउंड हो गया, राइट। तो दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू द नंबर ऑफ चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काफी चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गई थी, राइट। बहुत सारी इन्वेंशन हुई थी 18th सेंचुरी में, जिसकी वजह से काफी जल्दी काम होने लग गया था, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग, राइट। और उस वजह से प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ रही थी। आउटपुट पर वर्कर एनहांस हुआ,
प्रोडक्शन और स्ट्रॉन्गर होने लग गए, यार्न और स्ट्रॉन्गर होने लग गया। रिचर्ड ऑकराइट वाज द वन हु क्रिएटेड द कॉटन मिल। और अभी तक प्रोडक्शन सिर्फ कंट्री साइड हो रही थी, लोगों के हाउस होल्ड में। अब फैक्ट्रीज भी सेटअप कर सकते थे, न्यू कॉस्टली मशीन्स कुड बी परचेज सेटअप एंड मेंटेन इन द मिल, राइट। और मिल प्रोसेस में सब चीजें अंडर वन रूफ होती थी, तो इजी टू मैनेज होता था। ज़्यादा केयरफुली हम सुपरविजन कर सकते थे, क्वालिटी को चेक कर सकते थे, लेबर के लिए लॉज बना सकते थे, विच वॉज डिफिकल्ट इन दी कंट्री साइड, क्योंकि हम घरों में जाके इनको मैनेज नहीं कर सकते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना तेजी से चल रहा था, व्हाट वाज इट्स स्पीड, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या यही है कि फैक्ट्रीज बढ़ी है, या घरों में भी इनोवेशन, या घरों में भी अपग्रेडेशन हुई है, घरों में जो काम हो रहा था उसमें भी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है, वो बताना है। तो इसमें आपने 4 फेजेस बताने हैं जो मैंने आपको बताए थे। तो सबसे पहले आपने यही बताना है, इट वाज रैपिड इन द बिगनिंग एंड देन इट वाज स्लो, राइट। अगर सबसे पहले फेज की बात करूँ, सबसे डायनामिक इंडस्ट्रीज कौन सी थी, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, दैट इज कॉटन एंड मेटल, राइट। सो कॉटन जो है सबसे ज्यादा लीडिंग सेक्टर था फर्स्ट फेज में 1840 तक। उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी आ गई, क्योंकि रेलवेज एक्सपैंड हो गई थी इंग्लैंड में, कॉलोनीज में, तो आयरन एंड स्टील की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो 1873 में ब्रिटेन ने आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट किया, वर्थ पाउंड 77 मिलियन, इट वाज डबल द वैल्यू ऑफ द कॉटन एक्सपोर्ट। ये हो गया फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में आपने बताना है कि जो नई इंडस्ट्रीज आई हैं उन्होंने पुरानी इंडस्ट्रीज को डिस्प्लेस नहीं कर पाई, क्योंकि एंड ऑफ 19th सेंचुरी में अभी भी आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन वाज वर्किंग इन फैक्ट्रीज, in technologically advanced industries, rest 80% are still working in their household. For textile production हमें large portion of output चाहिए होता था, ठीक है। And was a large portion of the output was produced not within the factory, but it was produced at the countryside, right। टेक्सटाइल प्रोडक्शन का सबसे आधे से ज़्यादा माल कंट्री साइड बन रहा था, अभी भी फैक्ट्रीज में नहीं बन रहा था। थर्ड में आपने बताना है कि कंट्री साइड में भी इनोवेशन हुई, बहुत ऑर्डिनरी इनोवेशन थी, छोटी छोटी इनोवेशन थी, जिसकी वजह से जो नॉन मैकेनाइज सेक्टर्स थे, जिसमें मशीनरी की जरूरत नहीं थी, वहाँ पे काम बढ़ गया, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पोर्ट्री, ग्लास वर्क, ट्रेनिंग, फर्नीचर मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट, राइट। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, लेकिन वो काफ़ी स्लो थे, राइट। और न्यू टेक्नोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव थी, उसको अडॉप्ट करना इजी नहीं था, मर्चेंट्स और इंडस्ट्रीज बहुत कॉशियस थे उनको यूज़ करने के लिए। अगर मशीन ख़राब भी हो जाती थी तो उसका रिपेयर काफ़ी कॉस्टली होता था, सो दे वर नॉट इफेक्टिव एज देयर इन्वेस्टर्स क्लेम्ड, ऑल राइट, क्लियर। देन लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है कि आपने स्टीम इंजन की केस स्टडी के बारे में एक्सप्लेन करना है, जिसकी वजह से जो पेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो काफ़ी धीमे हो गया था। तो सबसे पहले बताना, न्यू कॉमन ने स्टीम इंजन को प्रोड्यूस किया था, जेम्स वॉट ने उसको इम्प्रोवाइज किया था, राइट, और उसको पेटेंट करा लिया था 1781 में, राइट। मैथ्यू बोल्टन ने एक नया मॉडल मैन्युफैक्चर किया था, लेकिन उसको काफ़ी सालों तक बायर्स नहीं मिले। 19th सेंचुरी में सिर्फ 321 स्टीम इंजन थे पूरे इंग्लैंड में, जिसमें से 80 कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, 9 वूल इंडस्ट्रीज में थे, जो बाकी है कैनन वर्क और आयरन वर्क में थे। जो स्टीम इंजन है दे वर नॉट यूज इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज, वो किसी और इंडस्ट्रीज में नहीं यूज किए जाते, सिर्फ वूल इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते थे। सो इट वॉज अ वेरी पावरफुल एंड न्यू टेक्नोलॉजी, जिससे प्रोडक्टिविटी एकदम बढ़ गई है, लेकिन इट वॉज स्टिल नॉट एक्सेप्टेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिकॉज इट वॉज वेरी कॉस्टली। अगर वो खराब हो जाते थे तो उसका रिपेयर काफ़ी कॉस्टली होता था। तो ये 7 क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चंस आपके फर्स्ट टॉपिक से बन रहे हैं। And if you still have any doubt, you can comment in the comment box and kindly tell me whether this video was useful for you or not in the comment box. And if you still have any doubt, you can reach us out on Instagram, Facebook, Telegram. You can also comment your doubt in the comment box. Moreover, for the notes of this chapter, you can contact us on the number given below. So I will be meeting you guys super soon in my next video.